बेटा इंडिया is group of 28 state and 8 union territories. बेटा राघव, बेटा इंडिया is group of 28 state and 8 union territories. And बेटा it is not easy task to run the government of such a big country like India. That's why we adopt the system of two type of government. That's why we adopt two sets of government. First is central government. Because central government works for whole country. Central government works for whole country. And second is state government. Because state government look after the needs of the people of the state and make the laws of their own state. Beta, our constitution was adopted on 26 January 1950. When we adopt our constitution, we adopt our constitution on 26 January 1950. Beta, the Indian constitution is written constitution. It means each and every law related to our country, India, is written in our constitution. Beta, all the laws, all power of prime minister, president, chief minister, vice president of India, what are the function of central government, what are the function of state government, each and everything is written in our constitution. Beta, that's India's constitution is world lengthiest constitution. पूरे विश्व का सबसे मतलब लेंथी मतलब सबसे बड़ा संविधान है, because each and everything is written in our constitution. But now the question raised, what is government? But government is group of people having power and authority to run the administration of the country. What is government? Government is group of people having power and authority to run the administration of the country. Beta, what is the duty of government? The duty of government is to maintain law and order, protect people's freedom, and protect their rights. These are the duties of the government. And beta, what are the functions of government? Functions mean what type of work is done by the government. State government. Beta, state government runs schools. State government runs colleges. State government runs hospitals. Beta, all these are the function of state government. Beta, now the question raised, and the law related to states are also made by state government. But now the question raised, who make laws for the entire country? कि फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए लॉ बनाती है तो फिर पूरी कंट्री के लिए लॉ कौन बनाता है? यस राघव, यस बेटा, पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द होल कंट्री. एंड बेटा पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. बेटा पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. बेटा पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. Beta, if we want to make any law, then first of all that bill is introduced in लोकसभा और राज्यसभा. किसी भी हाउस में हम पहले बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे लोकसभा
Rajya Sabha. Beta, when that bill pass in Lok Sabha, then that bill sent to Rajya Sabha. If Rajya Sabha pass that bill, then that bill is sent to President for the signature. And if President sign that bill, then that bill become law. Now we will now in detail we will study Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Lok Sabha is called lower house of the parliament. It is also called house of people because members of Lok Sabha are directly elected by the people for the time period of 5 years. Beta, in India, every citizen who attain the age of 18 years or above get right to vote without any discrimination of caste, color and sex. Beta, in India, every citizen who attain the age of 18 years get right to vote without any discrimination of caste, color and sex. So beta, and any person who want to contest the election of Lok Sabha, beta, and any person who attain the age of 25 years can contest the election of Lok Sabha. Beta, member of Lok Sabha are directly elected by the people. Whole country is divided into 545 parts. Beta, 543 parts. Beta, the maximum member of Lok Sabha can be 552. Maximum member कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं according to our population. But at present we have 545 members of Lok Sabha because 2 members of Anglo-Indian community are nominated by the President of India. बेटा 2 members Anglo-Indian community के nominated किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं. So out of 545, बेटा total at present member are 545. 2 members are nominated by President of India. Left 543 members. So बेटा in Lok Sabha election, the whole country India is divided into 543 parts. And बेटा from each part we will select one candidate. हर में से हम एक कैंडिडेट को चुनते हैं. हर पार्ट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट खड़े होते हैं. ठीक है. And the candidate who get the maximum vote is declared winner. उसको winner घोषित किया जाता है. In this way we will get 543 members. बेटा these 543 members select one speaker. अपने में से ये 543 members एक speaker चुनते हैं. And what are the function of speaker? To guide the meetings of लोक सभा. लोक सभा की मीटिंग को गाइड करना, कैसे करवानी है, ठीक है, किसको कितना टाइम बोलने के लिए देना, वहां डिसिप्लिन मेंटेन करना. These are the function of speaker. Clear बेटा? Any doubt? बेटा any doubt regarding लोक सभा? बेटा now move on राज्य सभा. बेटा राज्य सभा is called upper house of the parliament because member of Rajya Sabha are not directly elected by the people. Member of Rajya Sabha are elected by the member of state legislative assemblies and the member of Lok Sabha. बेटा जब भी आफ्टर 5 years आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जब चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन होते हैं ना, जब हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुना था, दैट टाइम भी आपके मम्मी पापा वोट डालने गए थे. बेटा तो इन द इलेक्शन ऑफ राज्य सभा मेंबर ऑफ ऑल द 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, 28 की 28 जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उनके जितने भी मेंबर हैं वो प्लस मेंबर ऑफ लोक सभा टुगेदर इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्य सभा. क्लियर? बेटा member of state legislative assembly elect the member of Rajya Sabha. Member of state legislative assemblies, not Lok Sabha नहीं आएगा बेटा. Member of state legislative assemblies elect the member of Rajya Sabha. And बेटा member of Rajya Sabha are elected for the time period of 6 years. And member of Rajya Sabha are elected for the time period of 6 years. And after 2 years, 1/3 members got retired. हर 2 साल बाद 1/3 member, 1/3
मीन्स आउट ऑफ 3 1 मेंबर गॉट रिटायर्ड हो जाता है। एंड बेटा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बेटा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बेटा क्लियर, एनी डाउट? एंड बेटा राज्यसभा इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज बेटा इसमें कोई ना कोई जो मेंबर है वो हमेशा रहता है, बिकॉज 1/3 मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 इयर्स ना, ये कभी भी पूरा एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस। बेटा प्रेसिडेंट, बेटा प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द नेशन। बेटा प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। सो बेटा president is the first citizen of our country and president is supreme commander in chief of Indian army। and beta any bill become law only after the signature of president। clear beta? any bill become law only after the signature of president। beta now the question raised, how president of India is elected? बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड बेटा मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर फॉर्म इलेक्टोरल कॉलेज। जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज। दे आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज and they elect the president of India for the time period of 5 years and they elect the president of India for the time period of 5 years। and beta at present Mr. Ram Nath Kovind is president of India। beta any doubt in Lok Sabha, Rajya Sabha and president? You are free to ask any question। yes Raghav, ask a question। yes after 2 years beta after 2 years 1/3 member of Rajya Sabha got retired। clear beta? in brief beta आपको डिफरेंस आता है। what is the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha? first member of Lok Sabha is directly elected, member of Rajya Sabha is not directly elected। member of Lok Sabha are elected for the 5 years, member of Rajya Sabha are elected for 6 years। member of beta Lok Sabha is called lower house or house of people, Rajya Sabha is called upper house of the upper house of parliament। beta speaker guides the meeting of Lok Sabha, vice president of India is chairman of Rajya Sabha। at present there are 545 members in Lok Sabha, at present 250 members are in Rajya Sabha। in Lok Sabha 2 members are nominated by president of India, in Rajya Sabha 12 members are nominated by president of India। clear beta? you are all of you are right, able to write difference between Lok Sabha and Rajya Sabha? yes or no? yes beta। beta now the question raised, beta in India beta there are several political parties। India is a multi-party system country। multi-party system country means there are several political parties। yes Gurcharan, what? बेटा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? बेटा जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, सपोज करो पंजाब में, बेटा पंजाब में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 117 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 117 सीट्स हैं। तो बेटा द होल पंजाब इज डिवाइडेड इनटू 117 पार्ट्स। पूरे पंजाब को हम 117 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड बेटा दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। एंड बेटा वी विल सिलेक्ट वन कैंडिडेट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर इलेक्ट होता है ना, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलती है। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने मेंबर आते हैं? 117 मेंबर्स आ जाते हैं। और ये जो 117 मेंबर्स होते हैं
ये इनमें से जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली होती हैं, द पार्टी दैट गॉट मैक्सिमम सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। सपोज देयर आर 170 सीट्स, out of 117, one political party get 85, second get 15, next get 17। ठीक है, तो बेटा जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको 85 सीट्स मिली है वो सबसे ज्यादा है ना। तो बेटा द लीडर ऑफ इस पार्टी के जो लीडर है उसको जो स्टेट में क्या होता है गवर्नर इनवाइट करेगा अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। बेटा the leader of majority party is invited by the governor to form the government, and in this way and beta the leader of majority party becomes chief minister of the state। ठीक है, वो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बन जाता है। जिस पूरे स्टेट में हमारे पंजाब की एग्जांपल दी है मैंने, इलेक्शन हुए, ये तीन पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी आई, सबसे ज्यादा सीट्स किसको मिली, 85 वाले को। मान लो ये ए पॉलिटिकल पार्टी है, ये बी पॉलिटिकल पार्टी है, सी है। ए गॉट मैक्सिमम वोट्स सीट्स, तो ए पॉलिटिकल पार्टी विद मैक्सिमम सीट एंड द लीडर ऑफ ए पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर and beta governor invite the leader of A party to form the government, and the leader of A party will become the chief minister of the state। beta in the same way in the election of Lok Sabha, beta whole India is divided into 543 parts, and beta each part is known as constituency। हर part को हम एक constituency बोलते हैं। अब हमने 543 में से सपोज करो एक पॉलिटिकल पार्टी को मिली 350, ठीक है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मिली 100, तीसरी को मिली 50, फोर्थ को मिली 42। ए बी सी एंड डी, चार पॉलिटिकल पार्टी है, ए बी सी डी, लोकसभा इलेक्शंस की बात हो रही है। अब बेटा ए पॉलिटिकल पार्टी गेट मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा। So then beta in central level, beta in the state, at the state level governor invite, and at the national level president invite the leader of A party to form the government। ठीक है, प्रेसिडेंट ए पार्टी के लीडर को बोलेगा आप गवर्नमेंट को फॉर्म करो, बनाओ अपनी सरकार। तो बेटा जो लीडर ऑफ ए पार्टी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बन जाएगा। क्लियर, आपको पता चला हाउ प्राइम मिनिस्टर एंड हाउ चीफ मिनिस्टर आर इलेक्टेड, यस और नो। सो बेटा नाउ बेटा फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट, बेटा बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बेटा अगर हमें गवर्नमेंट बनानी है तो 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। इफ वी वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट that 2/3 majority is required। 2/3 majority means out of 3 2 members हमारे साथ होने चाहिए। It means if there are यस बेटा माई क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक मिनट बेटा। इफ टू फॉर्म द गवर्नमेंट 2/3 majority is required, 2/3 majority is required means if there are 300 seats, then हमारी पास कितनी हमारी कम से कम कितनी सीट्स होनी चाहिए, 200। कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए 300 में से 200 सीट्स पर जीतना जरूरी है इलेक्शन। अगर उसने 200 में से 199 सीट्स पर भी इलेक्शन जीत लिया तो then that party is not able to form the government। क्लियर, तो उसको तो वो अपनी सरकार नहीं बना सकती है बेटा। तो अब अगर ऐसा हो गया कि अब किसी के पास मान लो 200 सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के, और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास 150 सीट्स है,
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास 75 है, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास 50 है, और नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी के पास 25 है। तो क्या होगा बेटा, जो जिसके पास 150 है वो जिसके पास 75 है उससे कहेगा कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बना लो। तो बेटा when more than बेटा sometime when no party gets majority, many parties come together to form the government. This is called coalition government. हम मेरे को चाहिए नहीं 200 सीट्स, मैंने जीती 150 सीट्स, मेरी पॉलिटिकल पार्टी को 200 सीट्स चाहिए थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन मेरी पॉलिटिकल पार्टी की कितनी सीट्स आई 150। मैंने क्या किया, एक और बी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी 75 सीट्स आई, मैंने उनको कहा हम दोनों मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो 150 प्लस 75 मेरे पास कितनी होगी 250। नाउ आई एम एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब मैं सरकार बनाने की काबिल होगी ना, मेरे पास 200 सीट्स हो गई। तो बेटा when sometime when no party gets clear cut majority, many parties come together to form the government. This is called coalition government. Yes or no? Clear? Any doubt beta? Yes, Gulcharan, ask a question. Yes. अगर किसकी बेटा देखो अभी तक इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं कि टू पॉलिटिकल पार्टी गेट सेम सीट्स, क्योंकि देखो 117 है मान लो, कई बार तो इवन नंबर में और ऑड नंबर में होता है, तो दोनों को तो एक जैसी सीट्स मिल नहीं सकती। इवन नंबर में होगा तो ही दोनों को सेम सीट्स मिल सकती है ना, अगर 200 है तो 100 विनर हो सकते हैं। बेटा इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत में कोई दो पॉलिटिकल पार्टी थोड़े ना कि एक को 100 मिल गई दूसरे को 100 मिल गई। इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। आप इलेक्शन में कभी वोट डालने जाओगे वहां 20-25 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है ना, एंड यू विल बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो रहे हो किसको वोट डालना, ठीक है। तो बेटा अगर भारत में कभी अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि दो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है नहीं है, देयर आर सेवरल पॉलिटिकल पार्टी, तो इसलिए कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के भी 100 है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के भी 100 है, मान लो सेम और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने के फेवर में नहीं है, या तो दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी, और अगर दोनों कहती है हमने नहीं मिलना, हमने अलग अलग रहना है, देन अगेन इलेक्शन, फिर क्या होंगे दोबारा से इलेक्शन, समझ में आएगा? फिर क्या होंगे दोबारा से इलेक्शन होंगे। बेटा नाउ मूव ऑन बेटा स्टेट गवर्नमेंट। बेटा स्टेट गवर्नमेंट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। बेटा एवरी स्टेट हैज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बेटा हर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड विधानसभा। उसको हम क्या कहते हैं, विधानसभा भी कहते हैं। एंड बेटा मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर नोन एज एमएलए। क्या बोलते हैं उसको, एमएलए। एंड बेटा मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज member of parliament, MP. Member of Lok Sabha and Rajya Sabha are called MP, and member of state legislative assembly are called MLAs. Beta the member of legislative assembly are elected for the term of 5 years. बेटा विधानसभा की जो मेंबर्स हैं वो भी कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं, 5 years। बेटा a direct election take place in the state, हर स्टेट में इलेक्शन होता है बेटा डायरेक्ट। दिस मीन दैट दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। बेटा मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आर आल्सो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल of that state who attain the age of 18 years. बेटा member of state legislative assembly, बेटा member of state legislative assembly also elect for the time period of 5 years by the member of that state who attain the age of 18 years. And बेटा the whole state is divided into वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। जितने हमने मेंबर एक स्टेट में इलेक्ट करने हैं उतने पार्ट्स में
होल स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है एंड ईच स्मॉलर पार्ट इज नोन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। बेटा फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वी इलेक्ट वन मेंबर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हम एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं और इस तरीके से जब सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, the party that gets the maximum seat in the state legislative assembly election, the government invite the leader of that political party to form the government। और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता होता है वो क्या बन जाता है? चीफ मिनिस्टर। वो क्या बन जाता है? द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द इलेक्शन ऑफ the state legislative assembly becomes the chief minister of the state। and beta who is governor? beta governor is the first citizen of the state का पहला नागरिक होता है। the first citizen of the country is president and first citizen of the state is governor। and beta governors are appointed by the president of India। beta governors को कौन अपॉइंट करता है? president of India। हर स्टेट में गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा मूव ऑन जुडिशरी। बेटा जुडिशरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। बेटा जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द कंट्री। बेटा लेजिस्लेचर हमारे लिए कानून बनाती है। लेजिस्लेचर में क्या आता है? पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द कंट्री ना। लेजिस्लेचर कंट्री के लिए कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव सरकारी ऑफिसर्स। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, सरकार के दफ्तर, सरकार के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। बेटा दे इंप्लीमेंट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। बेटा लॉ बनाने का काम करता है लेजिस्लेचर, उनको इंप्लीमेंट करने का काम करता है, लागू करवाने का काम करते हैं सरकारी कर्मचारी, तो उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा है, ठीक है, तो उनको सजा कौन देगा? उसका काम कौन करेगा? जुडिशरी। कौन करेगा? जुडिशरी। बेटा सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री एंड इट इज सिचुएटेड इन कैपिटल ऑफ द नेशन न्यू दिल्ली। और ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। बेटा इन ईच स्टेट हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। हर स्टेट की सबसे बड़ी अदालत का नाम क्या है? हाई कोर्ट। And beta high court is situated in the capital of that state। और हाई कोर्ट कहाँ है? हर स्टेट की कैपिटल में। फॉर एग्जाम्पल बेटा पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, सो बेटा और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। दैट्स व्हाई पंजाब एंड हरियाणा हैव सेम हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। बेटा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Who is the head of the Supreme Court? Chief Justice of India is the head of the Supreme Court। Beta, there are also many judges in Supreme Court। Beta, Chief Justice is the head of the Supreme Court, but there are some other judges also। And beta, the judges of Supreme Court are appointed by the President of India। Beta, President of India appoint the judges of Supreme Court। and beta High Court at the state level, High Court is the highest court and beta the head is the Chief Justice of the state। beta and who is head of High Court? Chief Justice of State। बेटा हाई कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है, इन सिंपल लैंग्वेज, हाई कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है वो क्या है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। ठीक है, वो क्या है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। बेटा ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बेटा इट इज नॉट इजी टास्क टू रन अ बिग स्टेट। एक बड़ी स्टेट को चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। दैट्स व्हाई हर स्टेट्स को हम डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड बना देते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? चीफ मिनिस्टर को देता है। इस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर का काम क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो बेटा हर डिस्ट्रिक्ट की एक अलग कोर्ट होती है और बेटा each state consists of district, each district has a district and session court और हर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट और सेशन
सेशन जज का एक में जजेस होते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। बेटा with this we have finished this revision of this chapter. So beta if you have any doubt you are free to ask. Yes Mehak, ask your question. Divya raise her hand. Yes Divya, ask your question. Yes Divya, ask your question बच्चे. मॉर्निंग मैम। Ask your question. मैंने लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितनी देर के लिए इलेक्ट होते हैं? The members of Lok Sabha are elected for the term of 5 years. Member of Lok Sabha are elected for the term of 5 years. और मैम लोकसभा में कितने? Yes बेटा. और मैम राज्यसभा के कितनी देर के लिए होते हैं? बेटा member of मैम राज्यसभा राज्यसभा के मेंबर कितनी देर के लिए इलेक्ट होते हैं? बेटा 6 years. Member of Lok Sabha are elected for 5 years and member of Rajya Sabha are elected for the 6 years. Yes Kritika, ask your question बच्चे. Yes Kritika, ask your question. मॉर्निंग मैम। Yes बच्चे. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning Kritika. मैम मैंने आपसे पूछना था कि मैम जो प्रेसिडेंट होता है मैम वो कितने इयर्स के लिए इलेक्ट होता है? President of India is also elected for 5 years. ओके मैम, थैंक यू मैम। Beta, revise this chapter. It is your homework, beta. Revise this chapter at your home.